السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں ارم زعیم۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ حکومت کی جانب سے ہم وطنوں کو عید کا تحفہ دے دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6.5 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر بڑھائی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل احمد، یہی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اب حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا ہے عوام پر۔ جی ہاں، عید سے پہلے یہ پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے، 1 اگست سے اپلائی ہو جائے گا، اور سب سے زیادہ جو اضافہ ہے فواز وہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں کیا گیا ہے۔ 6 روپے 62 پیسے قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح مٹی کا تیل 5 روپے 97 پیسے، اور جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، لیکن جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ اوگرا نے 10 روپے سے زیادہ قیمت تجویز کی تھی اضافے کی، لیکن حکومت نے جو اضافہ کیا ہے یہ 15 دن بعد، چونکہ ہر 15 دن بعد اب قیمتیں ریوائز ہوا کریں گی، تو شاید لگتا یوں ہے کہ اگلی دفعہ مزید اس میں اضافہ متوقع ہے۔ اب پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 103 روپے 97 پیسے ہو گئی ہے، اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل 106 روپے 46 پیسے، اور مٹی کا تیل 65 روپے 29 پیسے، اور لائٹ ڈیزل جو ہے وہ 62 روپے 86 پیسے کا ہو گیا ہے، اور آج رات 12 بجے سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو جائے گا۔ فواز جی بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ کل کچھ لوگوں نے چمن بارڈر کھولنے کے لیے زبردستی کی، سرحد پار سے فائرنگ بھی کی، چیک پوسٹ کو نقصان پہنچا تو پاکستان نے بھی رد عمل دیا۔ اسمگلنگ میں ملوث عناصر نے لوگوں کو اکسایا جو کشیدگی کا سبب بنا۔ چمن کے ارد گرد جو پوسٹیں ہیں ہماری، اس کے قریب ایک فائرنگ ہوئی ہے، پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسمگلنگ بھی کافی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ کچھ ایسے مفاد پرست عناصر ہوتے ہیں جنہوں نے کہ ان کو اکسایا جو لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے، اور اس میں کشیدگی پیدا ہوئی، اور کچھ لوگوں نے زبردستی اس کو بارڈر سے، اس پوسٹ سے نکلنے کی کوشش کی، اور اس دوران میں افغانستان کی سائڈ سے فائر بھی ہوئے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک ٹینشن کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جب یہ کشیدگی ہوئی اور وہاں کی پوسٹوں کو نقصان پہنچایا گیا، تو ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے بھی ری ایکشن ہوا۔ چمن میں پاک افغان بارڈر پر فائرنگ کے واقعے پر دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان فورسز نے چمن باب دوستی پر نہتے شہریوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستان کا اقدام صرف اپنے دفاع کے لیے تھا۔ مزید جان لیتے ہیں، بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، ساری صورتحال پر کیا کہیں گے آپ؟ جی، پاکستان کی جانب سے جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ سیلف ڈیفینس میں، اور وہاں پہ جو ہنگامہ خیزی تھی اس کو دور کرنے کے لیے، اور وہاں پہ امن کے لیے کیا گیا۔ یہ کل کا واقعہ ہے، اور اس میں اللہ کا شکر ہے ایسی خونریزی نہیں ہوئی۔ جو افغانستان کی جانب سے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ افغان فورسز جو ہیں وہ انہوں نے ہمارا جو کھولا گیا تھا اس کو سنبھال کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ جو تھوڑی بہت ہنگامہ آ رہی تھی اس کو ادروائز قابو کیا جا سکتا، کنٹرول کیا جا سکتا تھا، لیکن افغان فورسز جو ہیں وہ انہوں نے بلا اشتعال وہاں پہ فائرنگ کی، اور جس کے نتیجے میں ایک بدمزگی پیدا ہوئی۔ پاکستان کو پھر جوابی کارروائی کرنا تھی۔ پاکستان پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ ریسنٹلی پاکستان نے واگا کے راستے جو افغانستان کو بھارت اپنا مال بھجوانے کے لیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا خالد عظیم صاحب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ چمن میں کل جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دفتر خارجہ کو مسئلہ افغانستان کے سامنے اٹھانے کو کہا ہے۔ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس مسئلے کو افغانستان کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے، دفتر خارجہ نے ٹیک اپ کیا ہے۔ میں نے اپنے سفیر کو کہا ہے کہ وہاں ٹیک اپ کرے۔ میں شکر گزار ہوں جناب حنیف اکبر صاحب کا، انہوں نے نوٹس لیا ہے، اور مجھے امید ہے اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے سلجھایا جائے گا۔
आधे से ज्यादा कराची क्यों डूबा? वज़ीर आला सिंध ने नाले ओवरफ्लो होने का सारा मलबा ग्रीन लाइन मंसूबे पर डाल दिया। मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर न करने का शिकवा भी कर दिया। अहम इजलास के दौरान कोर कमांडर कराची ने तजवीज दी कि सीवरेज सिस्टम को जदीद निजाम के जरिए ठीक किया जाए। दूसरी जानिब पाक फौज और सूबाई हुकूमत ने शहर के बरसाती नालों पर कब्जा खत्म कराने पर इत्तेफाक कर लिया। 3 बड़े नालों की सफाई FWO करेगी। इस हवाले से देखिए संजय साधवानी की रिपोर्ट। कराची डूब गया मगर कोई जिम्मेदार शर्म से डूबने को बिल्कुल तैयार नहीं। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुराद अली शाह ने 2 टोक कह दिया कि नागन चौरंगी और अतराफ का इलाका ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की वजह से डूबा। वफाक ने सूबाई हुकूमत से पूछा, न मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर की। मंसूबा पूरा करने के लिए कई जगहों पर नाला बंद कर दिया गया। गुजर नाला, लियाकताबाद और शेरशाह सूरी रोड पर ग्रीन लाइन की वजह से ही मसला पैदा हुआ। वजीर आला ने ग्रीन लाइन मंसूबे के डिजाइन को ही डिफेक्टेड करार दे दिया। इजलास में कोर कमांडर कराची और चेयरमैन NDMA भी शरीक थे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने कहा कि सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। इस काम में FWO भी सिंध हुकूमत के साथ काम कर सकती है। मुराद अली शाह ने कहा, सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी के सिस्टम से अलग करना होगा। इस काम को S3 मंसूबे का हिस्सा बना रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में नालों पर तजावुजात खत्म करने पर जोर दिया। कराची में बरसाती नालों पर कब्जे और तजावुजात खत्म कराने का मिशन। सिंध हुकूमत और पाक फौज एक पेज पर आ गए। कब्जे खत्म कराने पर इत्तेफाक हो गया। 3 बड़े नालों की सफाई FWO करेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए हैं, जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, इजलास की अंदरूनी कहानी से आगाह कीजिएगा। ये फैसला किया गया है कि शहर कायद के जो 38 बरसाती नाले हैं जिनके इतराफ कब्जे हो चुके हैं, गुजर नाले के जो ऊपर कब्जे किए गए हैं, जो घर बनाए गए हैं, जो कब्जा माफिया ने जो है वहाँ पर लैंड ग्रेबिंग की है, उस पर अब कार्रवाई की जाएगी। NDMA और सिंध हुकूमत मुश्तरका हिकमत बनाएंगे। पाक फौज भरपूर मदद फराहम करेगी और ये कब्जे जो है वहाँ से खत्म कराए जाएंगे। शहर कायद के 3 बड़े नाले, गुजर नाले समेत उनकी सफाई जो है वो FWO करेगी। सिंध हुकूमत उसके लिए वसाइल और फंड फराहम करेगी और FWO की जिम्मेदारी होगी कि इन नालों को साफ करे। जी संजय साधवानी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वजीर अली जैदी के जाली हुकूमत और जाले चेयरमैन पर लफ्जी वार थमे नहीं। कहते हैं बिलावल को इंतजामी उमूर और सियासत का कोई तजर्बा नहीं। कराची डूब रहा था और ये लोग केक काट रहे थे। वफाकी वजीर ने वाज़ेह कर दिया कि वजीर आजम आइन और कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि शहर कायद के अवाम परेशानी का शिकार हों और वजीर आजम खामोश रहें। कोई पता नहीं सियासत का, इसको बच्चों की तरह असेंबली में खड़े होकर रोता रहा है। कोई पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया, कोई आस्तीन चला के कभी दफ्तर में नहीं बैठा, कोई नौकरी नहीं की, कोई दफ्तर भी कोई है कि नहीं है। तो सरदारी इनकॉर्पोरेटेड का दफ्तर होगा ना, कोई ओमनी ग्रुप का दफ्तर हमें पता है, लेकिन वहाँ भी जाके काम नहीं किया इसने। मोटरसाइकिल चला रही आती नहीं है, रॉकेट में जाके बैठ गए कि मैं रॉकेट उड़ा लूंगा, मैं वो कान में लगा लूंगा। सैलाब आया हुआ है तुम्हारे सूबे में, गटर में से लोगों की लाशें निकल रही हैं, तुम लाहौर में केक काट रहे हो। पार्टनरशिप कर ली है, नहीं आप लीड करेंगे, नहीं आप लीड करेंगे, उसके साथ कर रहे हैं मौसूफ पार्टनरशिप जो इनके वालिद साहब के पेट को काट के रोड पे घसीट के करप्शन का पैसा निकालने वाले थे। इस जमदारी को लाहौर की सड़कों पे नाम घसीटा, मैंने तो कहा था विल दिखा दो, विल, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह के लिए हम टेक्स कैंडल ब्रेक करके दूंगा। मुराद अली शाह से मैं ये कहना चाहता हूँ, ओमनी ग्रुप की GIT बनी है, उसका पहले जवाब दो। 18वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर कानून को दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कराची के लोग डूबे जाएं, कोई सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही तो प्राइम मिनिस्टर खामोश बैठा रहे। बिलावल भुट्टो वफाकी वजीर अली जैदी के निशाने पर आए हुए हैं। PTI रहनुमा जाले कायद की तर्ज सियासत और ना तजर्बेकारी को आड़े हाथों ले रहे हैं। इस बार बिलावल की तकरीर के अंदाज को हदफ बना लिया। आइए आपको भी दिखाते हैं। ये क्या बच्चों की तरह असेंबली में खड़े होकर रोता रहा, जैसे किसी ने बकरी चोरी कर ली उसने, चीख चीख के। अभी मैंने खरीद ली है असेंबली के लिए कि जब ये मौसूफ खड़े होंगे ना, इनको बड़ा देर एतराज आया, कोई पता नहीं सियासत का, इसको
آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے جوان کندھے ہیں، ذمہ داری میں ان کو دوں گا. کیا مخلوق ہے یہ؟ کون سی مخلوق ہے؟ جوان کندھے ہیں، ذمہ داری میں ان کو دوں گا. کراچی میں گجر نالے پر تجاوزات آج کا مسئلہ نہیں ہے. 4 سال پہلے بھی نالے سے بڑے پیمانے پر قبضے خالی کرائے گئے تھے، مگر ذمہ داروں نے پلٹ کر خبر تک نہ لی اور تجاوزات دوبارہ قائم ہو گئیں. عامر مجید کی رپورٹ دیکھیے. 27 جولائی کو کراچی کا مرکز صرف 40 ملی میٹر بارش سے ہی ڈوب گیا. آخر ایسا کیوں ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں. کراچی کے وسط میں واقع گجر نالا تجاوزات سے بھرا پڑا ہے اور ستم یہ کہ سیوریج اور برساتی پانی کی نکاسی بھی اسی ایک نالے سے ہوتی ہے. یہی نہیں بلکہ 40,000 رننگ فٹ پر محیط اس نالے سے ملنے والے 10 نالوں پر بھی تجاوزات قائم ہیں. اللہ والی چورنگی نالا، نیو کراچی، خواجہ اجمیر نگری، بفر زون نالا، کلندریا، شپ آنر کالج، حیدری نالا 1 اور 2، ضیاء الدین، مجاہد کالونی، پیٹرول پمپ نالا مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے گجر نالے میں گرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس نالے پر تجاوزات ہٹانے کے لیے کارروائی نہیں کی گئی. 2015 سے 2016 کے دوران نالے پر قائم 4,000 تجاوزات کو ختم کیا گیا. تجاوزات تو ختم کر دی گئیں مگر منصوبے کے تحت سڑک تعمیر نہ کرنے کی وجہ سے قبضہ مافیا پھر سرگرم ہو گیا اور 70% علاقے پر دوبارہ تجاوزات قائم کر دی گئیں. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اعداد و شمار کے مطابق اگر گجر نالا بحال ہو جائے تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کی 57 لاکھ اور ضلع غربی کی 16 لاکھ آبادی یعنی شہر کی تقریباً آدھی آبادی کا سیوریج اور برساتی پانی کی نکاسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. عامر مجید، سما، کراچی. پیپلز پارٹی نے کراچی کی صفائی کے حوالے سے فوج کی تعیناتی کے وزیر اعظم کے فیصلے کو غیر دانشمندانہ قرار دے دیا. پیپلز پارٹی کے مطابق فوج پر پہلے ہی اہم ذمہ داریاں ہیں، انہیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. سما کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سنجے سادوانی، ان سے بات کر لیتے ہیں. سنجے، تفصیل سے بتائیے گا کیا موقف ہے اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی سیاست کے لیے فوج کو نہ گھسیٹیں تو بہتر ہوگا. وزیر اعظم کے علم میں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت کراچی میں بلدیاتی اداروں کی تباہی کی ذمہ دار ہے. حالیہ بارشوں میں ایم کیو ایم کے زیر اثر جو ادارے ہیں، جو علاقے ہیں، ان میں بدترین جو صورتحال ہوئی اور اس کے ذمہ دار میئر کراچی ہیں. وزیر اعظم فوج کو استعمال کر رہے ہیں اور کراچی میں فوج کو نہ بھیجیں. فوج سیکیورٹی کے لیے ہی کافی ہے، ان کو سیاست میں نہ گھٹی جائے. کراچی کی صفائی کے ادارے کراچی میں موجود ہیں، فوج کے پاس پہلے ہی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان کو یہ ذمہ داری نہ دی جائے. پیپلز پارٹی کی جانب سے باضابطہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں وزیر اعظم کے فیصلے کو غیر دانشمندانہ قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ فوج کی کراچی میں تعیناتی انتہائی غلط ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. گجر نالہ ہے تو کراچی میں، لیکن اس کا نام سارا پاکستان جانتا ہے. گجر نالے کی وجہ شہرت ہر سال کراچی میں ہونے والی بارشیں ہیں، کیونکہ یہی وہ نالہ ہے جہاں تجاوزات کی بھرمار کے باعث کراچی والوں کو مانسون بارشوں کے دوران 8 آنسو بہانا پڑتے ہیں. کراچی کا گجر نالہ ہر بارش میں خبروں میں رہتا ہے. کہیں کچرے کے انبار اور کہیں تجاوزات کی بھرمار پانی کی روانی روک دیتی ہے. گجر نالے کو صاف کرنے کا کام کئی دہائیوں سے جاری ہے. گوگل ارتھ کی یہ تصاویر دیکھیں تو 2004 میں ایک جگہ نالے کے ساتھ درجنوں مکانات بنے تھے. 2017 میں وسیع علاقے سے تجاوزات ختم کر دی گئیں. اسی جگہ دوسری طرف بھی کئی مکانات تھے جو 13 سال بعد نظر نہیں آ رہے. گجر نالے پر ایک اور علاقے میں بھی دونوں اطراف گھر اور دکانیں قائم تھیں. اسی طرح ایک اور جگہ بھی 2004 میں بڑے پیمانے پر تجاوزات قائم کی گئی تھیں مگر ان کا بھی صفایا کر دیا گیا. تاہم گجر نالے پر مختلف مقامات پر اب بھی غیر قانونی تعمیرات برقرار ہیں. سندھ
सिंध हुकूमत ने ईद उल अजहा की छुट्टी में एक दिन का इजाफा कर दिया। ईद उल अजहा की छुट्टी 2 अगस्त के बजाय 3 अगस्त तक होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो सिंध हुकूमत के तहत इदारों में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है कि ईद के तीसरे दिन उन्हें दफ्तर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि सिंध हुकूमत ने ईद उल अजहा की छुट्टी में एक दिन का इजाफा कर दिया है। ईद उल अजहा की छुट्टी 2 अगस्त के बजाय अब 3 अगस्त तक होगी। मुल्क भर में ईद उल अजहा की तैयारियां। जो अब तक कुर्बानी के लिए जानवर नहीं खरीद सके, उनकी तलाश आखिरी मराहिल में है। व्यापारियों से खूब बहसो तकरार हो रही है। कसाई की तलाश भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है और छुरियां भी तो तेज करानी है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। कहीं कुर्बानी के लिए जानवर आ गया तो कहीं व्यापारी और शहरियों में अब भी भाव ताव जारी। कहीं सौदा बन गया तो कहीं व्यापारी अड़ गया। जो जानवर पहले खरीद चुके वो कसाई ढूंढने के मिशन पर हैं। अनाड़ी कसाई तो दस्तयाब, मगर प्रोफेशनल कसाई के नखरे किसी अफसर से कम नहीं। कुर्बानी की तैयारी के लिए छुरियों पर धार लगाने वालों की दुकानों पर भी रश लगा रहा। उधर बच्चा पार्टी कुछ घंटों के मेहमान रह जाने वालों के साथ वक्त गुजार रहे हैं। कोई जानवर को आखिरी वॉक करा रहा है तो कोई तवाज़ा में लगा है। कुछ जानवरों के साथ गुजारे लम्हात कैमरे में महफूज कर रहे हैं। बड़ी ईद पर खवातीन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो किचन में मजे मजे के खाने बनाने की तैयारियों में है। जिन खवातीन की किचन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी, वो सजने संवरने में मसरूफ हैं। तो जनाब, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मवेशी मंडियों में रश बढ़ चुका है। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारा साथ देंगे। उनसे मवेशी मंडियों की सूरत हाल जान लेते हैं। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे, जहां से हमें ज्वाइन कर चुके हैं समग्र नुमाइंदे सलमान अहमद। सलमान, अब चूंकि बिल्कुल थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है, सुबह ईद है, तो कुछ अंदाजा लगा के बताइए कि इस वक्त मवेशी मंडी में अंदाजन कितने जानवर होंगे? बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में अगर बताया जाए तो 1000 एकड़ रकबे पर यह कायम की गई थी मवेशी मंडी, जिसमें 2.5 लाख कुर्बानी के जानवर लाए गए थे। 48 मजबूरी तौर पर यहाँ पर ब्लॉक्स रखे गए थे। इन ब्लॉक्स में 23 ब्लॉक्स जो हैं वो वीआईपी और वीवीआईपी थे, जबकि 25 ब्लॉक्स जो हैं वो जनरल ब्लॉक्स के थे। अगर वीआईपी ब्लॉक्स तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, वीआईपी ब्लॉक्स तो पहले खत्म हो चुके हैं। जनरल ब्लॉक्स की अगर बात की जाए तो जनरल ब्लॉक्स में सिर्फ 3, 4 और 5 ब्लॉक्स, 5 नंबर के ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर चंद जानवर सिर्फ रह गए हैं। अगर कहा जाए तो सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में सिर्फ 7 से 8% अभी कुर्बानी के जानवर सिर्फ मौजूद है, जो कि खरीदारों के लिए खरीदारों के इंतजार में है। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों की जो जानिब से कीमतें कम करने के बिल्कुल जो है वो उन्होंने ठान रखी, कीमतें बिल्कुल कम नहीं करनी। जो 1 लाख का जानवर था वो 1.5 लाख डिमांड की जा रही है, और अगर 2 लाख का जानवर है तो 2.5 लाख उसकी डिमांड की जा रही है। तो ये सूरत हाल है, और चंद घंटे रह गए सिर्फ, और वक्त काफी नाजुक सूरत हाल यहाँ पर कराची की मवेशी मंडी में देखी जा रही है। लाहौर का रुख कर लेते हैं। दानियाल उमर, बताइएगा लाहौर की मवेशी मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? लाहौर की मवेशी मंडी में बिल्कुल कराची की मवेशी मंडी की तरह की यहाँ पे सूरत हाल है। यहाँ पे व्यापारी हैं वो अब शिकवा ये करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो कीमतें हैं वो बिल्कुल गिरा दी हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने अपने शहरों को वापस जाना है। लेकिन जो ग्राहक हैं उनसे अभी भी भाव ताव कर रहे हैं। उनका ग्राहकों का ये कहना है कि वो इस वक्त मंडी इसलिए आते हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो जानवर मजीद सस्ते हो जाते हैं। जो व्यापारी होते हैं उन्होंने अपने शहरों को वापस जाना होता है। जिस मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पाइन एवेन्यू डिफेंस रोड के करीब ये मंडी है। ये एक बहुत बड़े रकबे पर लगाई गई थी, और अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये मंडी जो है वो इसका रकबा बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो जानवर हैं वो फरोख्त हो चुके हुए हैं। 20% तकरीबन जानवर जो है वो बाकी बच गए हैं। जो व्यापारी हैं उनकी यहाँ से जो है वो जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब हमने जो है वो जो गाय जो कि हम 1.5 लाख 1,60,000 तक बताते थे खरीदार को, उसकी कीमत जो है वो अब हम 75,000 80,000। यानी यहाँ पर तो सूरत हाल बहुत बेहतर है। रावलपिंडी चलते हैं, उमर बिन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बिन आसिफ, यहाँ पर मवेशी मंडी की भी सूरत हाल बताइएगा, और छुरियां चाकू भी तेज कराए जाते हैं, क्या उनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं? इस बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए रावलपिंडी में जो मंडियां लगी थी इसमें तकरीबन तमाम तर जानवर जो हैं वो बिक चुके हैं। और जहां तक आपने बात की छुरी चाकू की, तो यहाँ पे इस दफा छुरी चाकू तेज करने वालों ने भी अपनी कीमतें थोड़ी बढ़ा दी हैं। अगर आपने छुरी तेज करानी है तो 25 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आपने टोका तेज कराना है तो आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे।
और अगर आपको नया टोका खरीदना है तो 300 रुपए से 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में मिलेगा। और आपको अगर छुरी चाहिए अपने पसंद की, जिससे आपने अपने पसंद की बोटी बनानी है अपने मवेशी की, तो वो आपको शुरू होगी 50 रुपए से और 300 रुपए तक जाएगी। यहाँ पे पिंडी वालों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि मिशन पे निकली हुई है कि जल्द से जल्द अपने छुरियां, टोके और कुल्हाड़े तेज करने, ताकि अल सुबह जो है नमाज के बाद आप सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा सके। मैं जब कला बाजार में और इस हवाले से फिर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम अली, आपकी जानिब में आऊंगी, मुल्तान की सूरत हाल बताइएगा, मवेशी मंडियों की भी। और बच्चे जो है वो इस ईद पर काफी खुश होते हैं क्योंकि जानवर, उनका काफी जानवरों का ख्याल किया जाता है, उसकी खिदमत में काफी मसरूफ दिखाई देते हैं बच्चे। ये बिल्कुल ईद कुर्बान आने में अब कुछ घंटे बाकी रह गए। मुल्तान की मवेशी मंडी में जहाँ बड़ी तादाद में जानवर मौजूद है, वहाँ पे जो शहरी अपने पसंद के जानवर खरीद के लेकर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के जिनार टाउन पे, जहाँ पे बच्चे हैं पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, उनके जो वालिदैन है उनके जानवर खरीद के यहाँ पे ले। लेकिन जब मोहल्ले में रौनक लग चुकी है, मुख्तलिफ जो जानवर है यहाँ पर मौजूद है, जानवर हैं वो गली मोहल्लों में घुमा फिरा भी रहे। कह रहे आज ईद का जो है, कल सुबह ईद होगी, जैसे आज आखिरी दिन है तो बकरी की खिदमत करना बड़ा जरूरी है। ठीक है मौसम अली, हम इस वक्त आवाजें भी सुन सकते हैं, बच्चे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया। और ईद उल अज़हा के पहले रोज गाय काटने के 12 से 15 हजार रुपए वसूल किए जाएंगे। कसाईयों ने जानवर ज़िबह करने के रेट मुकर्रर कर दिए हैं। बकरा 4 से 6 हजार में ज़िबह होगा, जबकि ऊंट नहर करवाना है तो 20 से 25 हजार रुपए जेब में होने चाहिए। दूसरी और तीसरी ईद पर कसाईयों की फीस में कमी आने का इम्कान है। ईद उल अज़हा के पहले रोज गाय काटने के 12 से 15 हजार रुपए वसूल किए जाएंगे। हुकूमत सिंध ने कराची में कुर्बानी के लिए 120 मुकामात मखसूस करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन शहरी अपने जानवर को घर से दूर ले जाकर कुर्बानी करने को तैयार नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम। अब जानवर घर के सामने नहीं बल्कि मखसूस मकाम पर ही कुर्बान किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अवाम ने ये फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं घर से दूर जानवर ज़िबा करने के बाद गोश्त तकसीम करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना कि हम जानवर लेके जाएं, वहाँ पे जाके कटवाएं फिर लेके आएं। इससे अच्छा तो ये है कि हम घर के बाहर कटवाएं और घर में ले जाएं। गवर्नमेंट ने अगर ये काम करना है तो कम से कम हमें फैसिलिटेट तो करे, बताए तो, क्योंकि हमें अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं मिली किसी के हवाले से। बल्दियाती नुमाइंदों ने भी सरकारी ऐलान पर अमल दरामद को नामुमकिन करार दे दिया। गवर्नमेंट ने ऐलान किया वो बिल्कुल मैं समझता हूँ समझ से बाहर है बिल्कुल, कि आवाम किस तरह से ग्राउंड में लेके पहुंचेगी, वहाँ से किस तरह लेके वापस अपने घरों को जाएगी। टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कराची के शहरी कहते हैं हुकूमत अपना काम ही पूरी ईमानदारी से कर ले और अलाइशे बर वक्त ठिकाने लगा दे तो कोरोना समेत दीगर बीमारियों से बचा जा सकता है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ईद मनाए सादगी से वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्वीट में आवाम से अपील कर दिया। लिखा, मास्क या कपड़े से चेहरा ढांप कर रखें और भीड़ में फासला रखें। अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियां नसीब करे। ईद मनाए सादगी से वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर, उनकी जानब से ट्वीट किया गया है। आवाम से उन्होंने अपील कर दी है। लिखा, मास्क या कपड़े से चेहरा ढांप रखे और भीड़ में फासला रखे। अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियां नसीब करे। पाकिस्तान ने आज़ादी की जंग लड़ते मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तिक़लाल कश्मीर मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे होगा, यही शाहराह हमें श्रीनगर लेकर जाएगी। हम 5 अगस्त को यौम इस्तिक़लाल मनाएंगे।
तजदीद अहद करेंगे कश्मीरियों के साथ। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, शाइनिंग इंडिया आज बर्निंग इंडिया में तब्दील हो चुका है। हमारी नजर श्रीनगर पर है और ये कश्मीर हाईवे जो है 5 अगस्त से इसका नाम हो जाएगा श्रीनगर हाईवे। ये वो शाहराह है जो हमें लेकर जाएगी श्रीनगर तक। उन्होंने 5 अगस्त की मुनासिबत से खुसूसी डाक टिकट जारी करने का ऐलान किया। उस दिन घरों पर कश्मीर का परचम लहराने की अपील की। वजीर आजम पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में आजाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में खिताब करने जा रहे हैं 5 को। एक खास पैगाम होगा हिंदुस्तान के जो मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनके लिए पैगाम होगा। श्रीनगर की तरफ हमारी आंख है, हमारी नजर है, हमारी मंजिल है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोहिद यूसुफ का कहना है 5 अगस्त की सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी, सायरन बजाए जाएंगे, जिसके बाद इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी यकजहती मार्च होंगे। फुर्ती और जहानत का जबरदस्त इम्तिजाज 9 साला पाकिस्तानी बच्ची नतालिया ने भारतीय PhD प्रोफेसर से आलमी रिकॉर्ड छीन कर अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया। मुख्तलिफ जुज़ को हाथों से तेजी से बोर्ड पर सजाना आसान नहीं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक सेकंड होता है अहम, जिसे 9 साल की नतालिया ने चैलेंज समझकर पूरा किया और सिर्फ 2 मिनट 42 सेकंड्स में पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स सेट करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। हमने टाइम मैनेजमेंट की, हमने प्लेसमेंट की, उसके बाद हमने जाके रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कबल ये रिकॉर्ड इंडिया की PhD प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल के पास था, जिसे छोटी सी परी ने तोड़ दिया। नतालिया नजम बचपन से ही साइंसी तजर्बात करने का शौक रखती है, जिसे हर कदम उसकी वालदा की हमायत हासिल है। घर के अंदर प्रैक्टिस रन्स के अंदर शी वाज डूइंग फिनोमेनल, लेकिन वो जाहिर है इतने सारे लोगों को देख के काफी नर्वस हो गई, बट थैंक गॉड हो गया। I mean, a record broken is a record broken. नतालिया केमिस्ट्री को अपना मनपसंद मजमून बताती है, जबकि बड़ी होकर वो बायोकेमिस्ट बनना चाहती है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहीन अहमद, समा, लाहौर।